اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عبادت کی اصل روح استغراق ہے۔ کہا میرا دل اور میری جان رات دن خدمت میں مصروف ہے۔ میں مغلوں کے معاملات اور مشاغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا۔ فرمایا یہ کام اور مشاغل بھی دراصل خدا ہی کے کام ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اپنا مال اور جسم فدا کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے دل کو آرام ملے۔ بس جب تک چند مسلمان بھی امن اور چین کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں، یہ کار خیر ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کا ملان تباہ اس کار خیر کی طرف کیا ہے، اور اس ملان کی افراد اس کی عنایت کی دلیل ہے۔ بس اس ملان تباہ میں فطور آ جانا اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی وہ عنایت نہیں رہی، کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی نیکی آپ کے ذریعہ سے ہو اور آپ ثواب اور بلند درجات کے مستحق ہوں۔ اس کی مثال حمام کی سی ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے، لیکن اس کی گرمی وہ گھاس پھوس، سوکھی لکڑی اور گوبر وغیرہ ہوتا ہے جو حمام کو گرم کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اگرچہ وہ سامان یعنی گھاس پھوس اور گوبر دیکھنے میں برے اور مکروہ ہوتے ہیں، جب ان سے حمام گرم ہوتا ہے تو اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس اثنا میں کچھ دوست آ گئے۔ آپ نے معذرت فرمائی کہ اگر میں تمہیں ٹھہراؤں نہیں، تم سے بات نہ کروں اور تمہاری خیریت نہ پوچھوں تو یہ احترام ہے، کیونکہ ہر چیز کا احترام وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں باپ یا بھائی کی خیریت پوچھنی اور ان کی تعظیم کرنی مناسب نہیں۔ نماز کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں سے بے التفاتی کرنا ہی التفات اور عین نوازش ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا اگر ان کی وجہ سے عبادت اور استغراق نہیں چھوڑے گا اور مشوش نہیں ہوگا تو ان پر خدا کا عذاب اور عذاب نازل نہیں ہوگا۔ بس نماز پڑھنے والے کا دوستوں اور عزیزوں کی طرف توجہ نہ کرنا ہی ان کے لیے بڑی مہربانی ہے، کیونکہ اس طرح وہ ایک ایسی حرکت سے باز رہا جس میں ان کے لیے عذاب تھا۔ سوال کیا کہ کیا خدا تک پہنچنے کے لیے نماز سے قریب تر بھی کوئی راستہ ہے؟ فرمایا صرف نماز ہی، لیکن نماز صرف اس ظاہری صورت میں نہیں ہے۔ اس کی یہ ظاہری صورت نماز کا قالب ہے، کیونکہ اس میں نماز کا اول اور آخر ہے، اور جس چیز کا آغاز اور انجام ہو وہ قالب ہے، کیونکہ نماز کا آغاز تکبیر ہے اور اس کا آخر سلام۔ اس طرح شہادت یہ نہیں ہے کہ صرف حرف زبان سے کہا جائے، کیونکہ اس کا بھی اول اور آخر ہے، اور جو چیز کے حرف اور صورت میں سما جائے اس کا اول اور آخر ضرور ہوتا ہے۔ وہ صورت اور قالب ہے، جان بے مثل اور بے انتہا ہے، اس کا اول اور آخر نہیں۔ یہ نماز انبیاء کی پیدا کرتا ہے۔ اب وہ نبی جس نے نماز پیدا کی یوں کہتا ہے، میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں کسی مرسل اور فرشتہ مقرب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز کی جان صرف ظاہریت نہیں بلکہ استغراق ہے، بے ہوشی ہے کہ یہ تمام صورتیں باہر ہی رہتی ہیں، وہاں یہ نہیں سماتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حالانکہ معنی محض ہیں، وہاں نہیں سماتے۔ سلطان العلماء قطب العالم مولانا بہاء الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے متعلق حکایت ہے۔ ایک دن ان کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حالت استغراق میں ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ بعض مریدوں نے آواز دی کہ مولانا نماز کا وقت ہو گیا۔ مولانا نے ان کی آواز کی پرواہ نہ کی۔ یہ مرید اٹھے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ دو مریدوں نے مولانا کی پیروی کی اور نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ جو مرید نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا نام خواجگی تھا۔ اس کی آنکھوں پر حقیقت کا راز کھل گیا۔ اس نے عالم کشف میں دیکھا کہ جو مرید امام کے پیچھے کھڑے نماز ادا کر رہے تھے وہ در حقیقت قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، اور وہ دو مرید جنہوں نے مولانا کی پیروی کی تھی وہ قبلہ رو کھڑے ہیں، کیونکہ مولانا ماہ و من سے گزر چکے تھے اور ان کی ہستی اس وقت فنا ہو گئی تھی۔
मौलाना बाकी न थे। खुदा के नूर ने उन्हें हलाक कर दिया था। मूतु कबला अंतमूतु, मौत के आने से पहले ही मर जाओ के मुस्ताक मौलाना खुदा के नूर बनकर रह गए थे। और जो शख्स खुदा के नूर की तरफ पीठ फेर ले और मुंह दीवार की तरफ करे, वो दरअसल किबलाही की तरफ मुंह फेरे हुए है, क्योंकि वो नूर किबला की जान है। आखिर वो लोग जो काबा की तरफ मुंह करते हैं, उन्होंने इस काबा की बुनियाद रखी है कि वो किबला गाहे आलिम बन गया है। बस अगर उसकी जात किबला बन जाए तो ये बेहतर है जैसे कि वो इसका किबला बना है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दोस्त से खफा हुए कि जब मैंने तुझे बुलाया तो आया क्यों नहीं। उसने जवाब दिया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। बोले, आखिर क्या मैंने तुझे बुलाया न था? उसने कहा, मैं मजबूर हूँ। फरमाया, ये अच्छा है कि तू हर वक्त ही मजबूर रहे। कुदरत रखते हुए भी हर हाल में तू अपने आप को मजबूर ही समझे, जैसा कि तू इज्जत की हालत में मजबूर होता है, क्योंकि तेरी ताकत से बालातर एक ताकत है। तू हर हालत में इस काहिर और बालातर ताकत के ताबे है। तू दो नीमाएं नीचती है, कभी तू मजबूर बहस है और कभी साहिब इख्तियार। उसकी कुदरत पर निगाह रख और हमेशा अपने आप को मजबूर समझ और बेदस्तोपा, आजिज, मिस्कीन और कमजोर ख्याल कर। इंसान एक तरफ शेर, चीते, अजगर सब उसके खौफ से लरजते हैं। तमाम आसमान और जमीन उसके सामने मजबूर और उसके मुसख्खिर हैं। वो बहुत बड़ा बादशाह है। उसका नूर चांद और सूरज के नूर की तरह नहीं। चांद सूरज के नूर के सामने हर चीज अपनी अपनी जगह पर कायम रहती है, लेकिन जब उसका नूर पर्दा से निकलता है तो ना आसमान बाकी रहता है, ना जमीन, ना आफताब बाकी रहता है और ना चांद। उस बादशाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहता। उसकी जात के सिवा हर शय फना होने वाली है। एक बादशाह ने एक दरवेश से कहा, जब तुझ पर खुदा की तजल्ली नाजिल हो और तू खुदा के कुर्ब में हो तो मुझे याद करना। दरवेश ने जवाब दिया, जब मैं उसके हुजूर में पहुंचता हूं और उस आफताबे जमाल किताब मुझ पर तजल्ली डालती है तो मैं खुद भी अपने आप को याद नहीं रहता, तुम्हें कैसे याद करूं। लेकिन खुदावंद ताला जब खुद किसी इंसान को पसंद करके उसे अपने आप में मुस्तगरिक करता है, तो अगर कोई उस इंसान का दामन पकड़ ले और अपनी हाजत रवाई के लिए उससे दरख्वास्त करे और वो हुजूरी के वक्त उस हाजतमंद के लिए खुदा से अर्ज करे, तो खुदा ताला वो हाजत पूरी कर देता है। हिकायत बयान करते हैं कि एक बादशाह था, एक बंदा खास उसका बहुत मुकर्रब था। वो गुलाम जब बादशाह के महल सराय की तरफ जाने लगता तो हाजतमंद लोग अपनी हाजतें लिखकर रुक के उसे देते कि वो बादशाह के हुजूर में पेश करते। वो उन रुक्कों को चमड़े की थैली में डाल देता, लेकिन जब वो बादशाह के हुजूर में पहुंचता तो बादशाह के जमाल किताब ना ला सकता और बेहोश हो जाता। बादशाह माशूकाना अंदाज से उसके सीना, जेब और चमड़े की थैली की तलाशी लेता कि ये बंदा जो मेरे हुस्न जमाल में मुस्तगरिक है, आखिर उसके पास क्या है। रुके निकाल लेता और हर रुका की पुश्त पर हाजत रवाई का हुक्म लिख देता और तमाम रुके फिर चमड़े की थैली में डाल देता। चुनाचे जिस किसी ने अपने रुक्का में जो कुछ लिखा होता वो उसे मिल जाता, बल्कि जो कुछ लिखा होता उससे दुगना मिल जाता और कोई महरूम न रहता। बादशाह के दूसरे बंदे जो होशो हवास में होते, उन्हें समझ में न आती कि हाजतमंदों की हाजतें वो किस तरह बादशाह के सामने पेश करें। जब वो ऐसी दरख्वास्तें बादशाह के सामने पेश भी करते तो 100 में से बेमुश्किल एक हाजतमंद की हाजत रवाई होती। खुदी की अहमियत। एक शख्स ने कहा, मैं यहां एक चीज भूल गया हूं। फरमाया कि दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसे कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर तुझे बाकी सब चीजें भूल जाएं और ये एक चीज याद रहे तो कोई डर नहीं, और अगर तू बाकी सब चीजों को खातिर में लाए और याद रखे और इस एक चीज को फरामोश कर दे तो तूने कुछ भी ना किया। ये ऐसा ही है कि एक बादशाह ने तुझे एक खास काम के लिए किसी गांव भेजा, तू गया और तुझे रास्ता में 100 काम भूल गए, मगर वो काम जिसके लिए बादशाह ने तुझे भेजा था वो तुझे ना भूला। तो यूं समझ के तूने कोई भी काम फरामोश नहीं किया। बस इंसान इस दुनिया में एक खास काम के लिए आया है और वही एक मकसद है। अगर वो उसे ना भूला
तो गोया वो कुछ भी नहीं भूला। हमने ये खास अमानत आसमानों और जमीन और पहाड़ों को पेश की तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया और इससे खौफ खाया और इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो अपने हक में जालिम और जाहिल था। वो अमानत हमने आसमानों को पेश की, वो इसे कबूल न कर सके। देखो, इससे कई काम ऐसे होते हैं जिनसे अकल दंग रह जाती है। पत्थर को लाल और याकूत बना देता है, पहाड़ों को सोने और चांदी की कानें बना देता है, और जमीन की नबातात को जोश में लाता और जिंदा करता है और उसे बहिश्ते अदन बना देता है। जमीन भी दानों को कबूल करती है और फल देती है, ऐबों को छुपाती है और सदाए अजायबात ऐसे पैदा करती है कि उनकी शरह नहीं हो सकती। इसी तरह पहाड़ भी गूनागू मादनियात पैदा करते हैं। ये सभी कुछ करते हैं, लेकिन उनसे एक काम नहीं हुआ और वो काम इंसान ने कर लिया। चुनाचे खुदा ने कहा, वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी। इसलिए ये नहीं कहा वलकद करमना समाए वल अर्ज, हमने बुजुर्गी दी आसमानों और जमीन को। बस इंसान ने वो काम कर दिखाया जो ना आसमानों से हो सका, ना जमीनों से और ना पहाड़ों से। जब वो काम कर लिया तो जुल्म और जहालत की खुद ही नफी हो गई। अगर तू ये कहे कि अगर मैं वो एक काम नहीं करता तो ना सही, बेशुमार दूसरे काम तो करता हूं। याद रख कि इंसान को उन दूसरे कामों के लिए नहीं पैदा किया गया। ये तो ऐसा ही है कि तू हिंदुस्तानी फौलाद की अनमोल तलवार जो बादशाहों के खजानों ही में मिलती है लाए और उसे गोश्त काटने का छुरा बना ले कि मैं इस तलवार को बेकार नहीं रखता, इससे यूं काम लेने में मसलहत है। या तू सोने की एक देग ले आए और उसमें शलगम पकाने लगे, हालांकि उसके एक जर्रा से 100 देगें हाथ आती हों। या एक जौहरदार तलवार को टूटा हुआ बर्तन लटकाने के लिए खोंटी बना ले और कहे मैं मसलहत इसी में देखता हूँ कि बर्तन को इस पर लटकाऊं, तलवार मेरे पास बेकार नहीं है। क्या ये अफसोस और हंसी का मुकाम नहीं कि जबकि बर्तन लकड़ी की खोंटी से या एक पैसे वाले लोहे की मीख से लटकाया जा सकता है, तो नाहक 100 दिनार वाली तलवार से ये काम दिया जाए। क्या ये अक्ल की बात है? खुदा ताला ने तेरी बड़ी कीमत मुकर्रर की है। वो फरमाता है, खुदा ताला ने मोमिनों से उनकी जान और माल को खरीद लिया है, उनके बदले में इन्हें जन्नत देखा। सूरह तौबा। तर्जुमाए शेर, कीमत में तू 2 जहानों से भी ज्यादा है। क्या करूं, तो खुद अपनी कदर कीमत नहीं जानता। तर्जुमाए मिसरा, अपने आप को सस्ता न बेच, क्योंकि तेरी कीमत बहुत ज्यादा है। खुदा ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे औकात, तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारे रोजगार तुमसे खरीद लिए हैं कि अगर ये सब चीजें मुझ पर सर्फ करोगे और मुझे दोगे तो इनका बदला मैं तुम्हें हमेशा के लिए बहिश्त दूंगा। मेरे नजदीक तेरी कीमत ये है। अगर तू अपने आप को दोज़ख के बदले फरोख्त कर दे तो इस हालत में तू अपने आप पर जुल्म करेगा। अगर तू ऐसा करे तो ये इसी तरह होगा जिसने 100 दिनार से खरीदी हुई तलवार दीवार में नस्ब करके उस पर कोई बर्तन लटका दिया। हम असल बात की तरफ आते हैं। तू बहाना पेश करता है कि मैं अपने आप को दुनिया के कामों में लगाए हुए हूँ। मैं फिका, हिकमत, मंतक, नुजूम, तिब वगैरह जैसे उलूम हासिल कर रहा हूँ। आखिर ये सब कुछ तेरे ही लिए है। अगर फिका है तो वो इसलिए कि कोई तेरे हाथ से रोटी न छीन ले, तेरे कपड़े ना उतार ले और तुझे मार ना डाले और तू सलामत रहे। इल्म नजूम की पूछता है तो इफलाक का हाल, जमीन पर उनका असर, अमन और खौफ की ज्यादती या कमी, इन सब बातों का ताल्लुक तेरे हालात से है। और अगर सितारा को लो तो सात और नहस का ताल्लुक तेरे ताला से है, ये भी तेरे ही लिए है। तू गौर करे तो असल चीज तू खुद है और ये सब कुछ तेरी शाखें हैं। जब तेरी शाखों की तफासील, अजायबात, अहवाल और हैरान कर देने वाले उलूम की कोई हद नहीं, तो सोच कि तू जो असल है तेरा क्या हाल है। जब तेरी शाखों का अरूज, हबूत, साद और नहस है तो तू के इन शाखों का असल है। आलिमे अरवाह में तेरा अरूज, हबूत, साद, नहस, नफा और नुकसान क्या होगा कि फलां रूह की ये खसूसियत है और वो ये कुछ कर सकती है और फलां काम उसके लिए मुनासिब है। इस नींद और ख़ोरिश के अलावा
तेरी असल खुराक कुछ और है। मैं अपने परवरदिगार के हुजूर में रहता हूँ, वही मुझको खिलाता और पिलाता है। इस दुनिया में तू उस खुराक को भूल गया है और ये खुराक खा रहा है। रात दिन तू तन परवरी में मसरूफ है। आखिर ये जिस्म तेरा घोड़ा है और ये दुनिया इसका अस्तबल है। घोड़े की खुराक सवार की खुराक नहीं होती। इसे तू अपने से बेहतर ख्वाब व खोरिश की नेमतें मुहैया कर रहा है, लेकिन इस वजह से कि हैवानियत और बेहमियत तुझ पर गालिब है, तू घोड़े का सवार होते हुए सब घोड़ों से भी पीछे रह गया है और आलिम बका के बादशाहों और अमीरों की सफ में तेरी जगह नहीं है। तेरा दिल वही है, जिस्म तुझ पर गालिब है, इसलिए तू जिस्म ही का हुक्म मानता है और उसी का तू कैदी बन गया है। ये ऐसे ही है जैसे मजनू ने लैला के शहर जाने का इरादा किया। जब तक मजनू को होश रहा वो ऊंट को उस तरफ दौड़ाता रहा। जब वो लैला के ख्याल में मुस्तगरिक हो गया तो अपने आप को और ऊंट को भूल गया। गांव में उस ऊंट का बच्चा था। ऊंट को मौका मिला तो उसने गांव का रुख कर लिया और वहां लौट आया। जब मजनू को होश आया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी मुसाफत सिर्फ 2 दिन की थी, मगर सफर में उसे 3 महीने लग चुके हैं। मजनू चिल्लाया कि ये ऊंट मेरे लिए मुसीबत है। ऊंट पर से कूदकर उतर आया और पैदल रवाना हुआ। मेरी ऊंटनी तू मेरे पीछे पीछे चल रही है और मेरे आगे आगे मोहब्बत का काफिला रवां है, इसलिए मैं और मेरी ऊंटनी 2 मुख्तलिफ रास्तों पर गामजन हैं। फरमाया सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक कदस्सरा ने इरशाद किया कि किसी ने उनसे कहा, फलां आदमी से मैंने आपकी तारीफ सुनी है। बोले, देखूं तो वो शख्स कौन है? क्या उसका मर्तबा ये है कि वो मुझे पहचान ले और मेरी तारीफ करे? अगर उसने मेरी बातों से मुझे पहचाना है तो वो मुझे नहीं पहचान सका, क्योंकि ना ये बातें रहेंगी, ना हर्फ, ना आवाज और ना लबो दहन रहेंगे। ये सब चीजें कायम-उज़-ज़ात नहीं बल्कि अर्ज हैं, उनकी असल कुछ नहीं। और अगर उसने मुझे मेरे फेल से पहचाना है तो भी ऐसा ही है, और अगर उसने मेरी जात पहचानी है तो मैं समझता हूं कि वो मेरी तारीफ कर सकता है और वो तारीफ मेरी ही है। हिकायत। कहते हैं एक बादशाह ने अपना बेटा एक अहले हुनर जमात के सुपुर्द कर रखा था कि वो अहले हुनर उसे इल्मे नुजूम और रमल वगैरह सिखाएं। उन्होंने उसे लिखा पढ़ाकर मुसल्लमत सबूत उस्ताद बना दिया। बेवकूफ़ी और अहमकपन उसमें बेकमाल मौजूद था। एक दिन बादशाह ने अंगूठी अपनी मुट्ठी में दबाई और बेटे का इम्तिहान लिया। कहा, बेटा मुझे बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है? उसने जवाब दिया, आपकी मुट्ठी में कोई ऐसी चीज है जो गोल है, जर्द है और अंदर से खाली है। बादशाह ने कहा, जब तुमने सारी निशानियां ठीक ठीक बता दी हैं तो अब हुक्म लगाओ कि वो क्या चीज है। वो बोला, उसे दफ होना चाहिए। बादशाह ने कहा, बेटा तूने कई बड़ी मुश्किल निशानियां बता दी जिनसे अकल वर्ता हैरत में पड़ गई, लेकिन ये छोटी सी बात तेरे इल्म और अकल में क्यों ना आई कि दफ जितनी बड़ी चीज मुट्ठी में नहीं आ सकती। इसी तरह हमारे जमाने के उलमा कई उलूम में मोशकाफियां करते हैं और जिन चीजों का ताल्लुक उनसे नहीं उन्हें खूब समझते हैं और उन पर बहुत हावी हैं, और जो चीज सबसे बड़ी और सबसे करीब तर है वो उनकी अपनी खुदी है। उनमें से कोई भी अपनी खुदी को नहीं जानता। चीजों की हुर्मत और हिल्लत के मुतालिक ये फतवा देते हैं कि ये चीज जायज है और वो नाजायज, ये चीज हलाल है और वो हराम, लेकिन इनमें से अपने आप को कोई जानता है कि वो हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज, पाक है या नापाक। बस उसका ये खला, जर्दी, नक्श और गोलाई सब आर्जी हैं। तो उसे आग में डालते तो इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहता। जात इन सब से मुर्रा है। वो जिस चीज की निशानी बताते हैं वो इल्म, फेल और कौल से ऐसी ही होती है, और जौहर यानी असल जात से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इन सब के बाद बाकी रहने वाली चीज जात ही है। इनकी बताई हुई निशानियां ऐसी ही हैं। ये वो सब निशानियां बता देते हैं और इन निशानियों की तशरीह खूब करते हैं और आखिर में हुक्म लगाते हैं कि मुट्ठी के अंदर दफ है। जो चीज के असल है उसकी उन्हें खबर नहीं होती। मैं परिंदा हूँ, बुलबुल हूँ या तोती हूँ। अगर वो मुझे कहें तुम किसी और किस्म की आवाज निकालो तो मुझसे ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी यही आवाज है। मैं किसी दूसरी तर्ज पर नहीं बोल सकता।
اس کے برعکس اگر کسی نے پرندہ کی آواز سیکھی ہے تو وہ خود پرندہ نہیں ہے، وہ صیاد ہے اور پرندوں کا دشمن ہے۔ وہ پرندوں جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ اسے پرندہ سمجھے۔ اگر انہیں حکم دیا جائے کہ اس آواز کے علاوہ تو کسی اور رنگ کی آواز نکال تو وہ بھی نکال سکتا ہے، چونکہ پہلی آواز بھی اس کی مانگی ہوئی تھی اور اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ کسی دوسری قسم کی آواز بھی نکال سکتا ہے، چونکہ اس نے دوسرے لوگوں کا مال چرانا سیکھ لیا ہے۔ وہ ہر گھر کا مال اپنا ظاہر کر کے دکھاتا ہے، چمن میں لالا دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو۔ وہ جانتا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہوگا۔ علامہ اقبال۔ ارتقا۔ کہا، یہ کتنی مہربانی ہے کہ مولانا تشریف لے آئے، مجھے اس کی توقع نہ تھی اور مجھے یہ وہم تک نہ تھا۔ میں اس لائق کہاں، مجھے چاہیے میں رات دن ہاتھ باندھے ان کے نوکروں اور خادموں کے زمرہ اور حلقہ میں رہوں، ابھی میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ فرمایا، منجملہ ان باتوں کے یہ ایک ہے کہ تمہاری ہمت بلند ہے، ہر چند کہ تمہارا مرتبہ نہایت بلند ہے اور تم بڑے بڑے کاموں میں مشغول ہو۔ اپنی بلندی ہمت کی وجہ سے تم اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہو اور موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہو، اور تم بے شمار کام اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہو۔ اگرچہ ہمارا دل ہمیشہ ان کی خدمت میں تھا، ہم نے چاہا کہ صورت دیکھنے کا شرف بھی حاصل کریں، کیونکہ صورت بھی بڑا اعتبار رکھتی ہے۔ اعتبار کا مقام مغز کے ساتھ مشارکت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بے مغز چیز پھولتی پھلتی نہیں، چھلکے کے بغیر بھی کسی چیز کو نشو و نما نہیں ہوتی۔ اگر بغیر چھلکے کے دانہ زمین میں بو دیا جائے تو وہ نہیں اگتا، اگر اسے چھلکے سمیت بویا جائے تو اگاتا ہے اور وہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ بس اس لحاظ سے جسم بھی ایک عظیم اصل ہے اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پاتا اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اے واللہ، اصل معنی ہے، اس سے پیشتر کہ وہ معنی کو سمجھے وہ خود سراپا معنی بن جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نماز کی 2 رکعت دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، ہر ایک کے مد نظر نہیں ہوتا، یہ صرف اس کے مد نظر ہوتا ہے جس کی 2 رکعتیں قضا ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، مگر اس سب کچھ کا ضائع ہو جانا 2 رکعت کے ضائع ہو جانے کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ایک درویش ایک بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس سے کہا، اے زاہد۔ اس نے جواب دیا، زاہد تو ہے۔ کہا، میں زاہد کیسے ہوا کہ دنیا کا سب کچھ میری ملکیت ہے؟ بولا، نہیں، تو عکس دیکھتا ہے، دنیا، آخرت اور تیرا ملک سب میری ملکیت ہیں اور دنیا میرے تصرف میں ہے، تو ہے کہ ایک لقمہ اور چگا پکانے ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثُمَّ وَجْهَ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ۔ جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ ہی رائج و مجرہ ہے، صرف وہی ہے جو منقطع ہونے والا نہیں اور باقی رہنے والا ہے۔ عاشقوں نے اپنے آپ کو اس چہرہ پر فدا کر دیا ہے، وہ اس کے عوض کچھ نہیں مانگتے۔ باقی لوگ ڈھور ڈنگروں کی طرح ہیں۔ فرمایا، اگرچہ وہ ڈھور ڈنگر ہیں مگر انعام کے مستحق ہیں، اور اگرچہ وہ گھوڑوں کی گھاس ہیں لیکن میرے استبل کے قبول کردہ ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اس گھاس کو یہاں سے اپنے طویلہ خاص میں لے جائے، جیسے اس کا آغاز عدم تھا ویسے ہی اسے اب وجود میں لے آئے، وجود کے طویلہ سے اسے جمادات میں لے آئے، اور جمادات کے طویلہ سے اسے نباتات کے طویلہ میں لے آئے، نباتات سے حیوانات میں، حیوانات سے انسانوں میں، اور انسانوں سے فرشتوں میں لے آئے، وہاں تک جہاں کی انتہا نہیں۔ بس یہ سب اس لیے ہوا تاکہ تو اقرار کرے کہ اس جنس کے لیے اس کے بے شمار طویلے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر تم لوگ چڑھتے رہو گے درجہ بدرجہ۔ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انشقاق۔ یہ اس لیے ظاہر کر دیا ہے کہ دوسرے طبقات جو آنے والے ہیں تو ان کا اقرار کرے، یہ اظہار اس لیے نہیں کیا کہ تو انکار کرے اور کہہ دے۔ صرف یہی ہے۔ ایک استاد اس لیے اپنی صنعت اور فرہنگ کی نمائش کرتا ہے کہ اس کے معتقد ہو جائیں، اور ان دوسرے فرہنگوں پر جو اس نے انہیں نہیں دکھائے ہیں ان کا بھی اقرار کرنے لگیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ کسان کو خلعت اور صلہ دیتا
और नवाजता है कि इससे और बहुत सी बातों की तवक्को करे और अपनी उम्मीद का दामन और फैलाए। बादशाह इसलिए नवाजिश नहीं करता कि किसान कहते बस यही कुछ है, बादशाह और इनाम नहीं देगा। उसने इसी पर बस कर दी है। बादशाह को अगर मालूम हो जाए कि किसान ऐसा कहेगा और ऐसा समझेगा तो वो उसे हरगिज इनाम ना दे। जाहिद वो है जो आखिरत को देखता है और दुनियादार लोग जानवरों की तरह खाने की चीजों पर जो गाज से ज्यादा वक़्त नहीं रखती नजर रखते हैं। लेकिन वो लोग जो खासतर और आरिफ हैं वो आखिर यानी आखिरत पर नजर रखते हैं, ना आखिर दुनिया के तोशा पर। उनकी नजर अव्वल पर पड़ती है। वो हर काम का आगाज जानते हैं। जैसे गंदम की हकीकत को जानने वाला गंदम बोकर जानता है कि गंदम उगेगी, उसने आगाज से अंजाम को देखा। इसी तरह जौ और चावल वगैरह जिसने अव्वल को देखा उसकी नजर आखिर पर नहीं, क्योंकि अव्वल ही से आखिर मालूम हो गया। ये लोग नादिर हैं जो आखिर को देखते हैं, दरमियाना दर्जा के लोग हैं। ये जो आखिर में हैं ये चौपाए और ढोर डंगर हैं। हर काम में दर्द आदमी की रहनुमाई करता है। जब तक उसके दिल में इस काम के लिए लालच और मोहब्बत पैदा होकर उसके अंदर दर्द पैदा ना करते, वो इस काम का कसद ही नहीं करता। वो बगैर दर्द के उसे मुयस्सर भी नहीं आता। ख्वाह दुनिया हो, ख्वाह आखिरत, सौदागरी हो या बादशाही, इल्म हो, ख्वाह नजूम। जब तक हजरत मरियम को दर्द-ए-ज़े शुरू ना हुआ वो दरख्त के पास ना गई। दर्द-ए-ज़े उन्हें दरख्त खुरमा के पास ले पहुंचा। इन्हें वो दर्द दरख्त के पास ले आया और दरख्त खुश्क मेवादार बन गया। जिस्म मरियम की तरह है और हम में से हर आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। अगर हमें दर्द पैदा होता है तो हमारा ईसा जन्म लेता है, और अगर दर्द नहीं होता तो ईसा भी जिस छुपे रास्ता से आया फिर अपने असल से मिल जाता है और हम उससे मारूम रह जाते हैं और बेबहरा रहते हैं। तर्जुमा शेर, अंदर रूह फाका कर रही है और बाहर जिस्म को साजो सामान हासिल है। शैतान ने इतना खा लिया कि उसे हैजा हो रहा है और जमशेद भूखा मर रहा है। अब इलाज कर, क्योंकि मसीहा जमीन पर मौजूद है। जब वो आसमान की तरफ चल दिया तो साथ दवाई भी गई। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।